Hello students, now we'll start new chapter Heron's formula. This chapter is based on triangle and its area. So in a scalene triangle there are three sides. At their length is A, B and C. Then their semi-perimeter is A plus B plus C upon 2. Perimeter is sum of all sides, semi-perimeter is half of that. So this is semi-perimeter. So if we want to calculate the area of a scalene triangle, we have a formula that is half into base into altitude. This is base and this is altitude. So half into base into corresponding altitude. So this is the formula to calculate the area. But if altitude is not given, then we can use Heron's formula. So area of a scalene triangle by Heron's formula is given by square root of s minus a, s minus b, s minus c. So this is the area of a triangle. So this is Heron's formula. We'll use this formula to calculate the area of a scalene triangle when its altitude is not given. If altitude and base are given, then we can use half into base into corresponding altitude. Okay, but if altitude is not given, then we can use Heron's formula. Okay. So there is no other concept to learn for first exercise. So let's start the exercise. Now exercise 12.1, first question. A traffic signal board indicating school ad is an equal triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180, then what will be the area of the signal board? तो एक सिग्नल बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है स्कूल एड, ताकि लोग गाड़ी धीरे चलाएं, बच्चे कभी भी बाहर आ सकते हैं. तो ये एक इक्वल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है. तो ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है बच्चों जिसकी साइड जो है इक्वल ट्रायंगल है ये, और इसकी साइड ए है. We need to find its area using Heron's formula. So firstly we will find semi perimeter. Heron's formula में सबसे पहले हम semi perimeter निकालते हैं, which is a plus b plus c upon 2, यानी sum of all sides का हाफ. लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि all the sides are equal. So a plus a upon 2. So semi perimeter is 3a upon 2. a plus a 3a upon 2. तो ये semi perimeter आ गया. Now area of triangle is given by s minus a, s minus b, s minus c. Okay, here all the sides are equal and s is 3a upon 2, then 3a upon 2 minus a, then s minus b, so s is 3 upon 2 and b is also a. All the sides are equal, तो b की जगह भी a लिख देंगे, and s is 3 upon 2 और minus c is also equals to a. तो इस तरह से we have to put the values. हमने वैल्यू पुट कर दी. Now I will simplify it. 3 upon 2 LCM लिया, 3a minus 2a, LCM लिया, 3a minus 2a, LCM 3a minus 2a. ठीक है. यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो 2 और 1 का LCM 2 आया, और ये 2 जाके उधर a से मल्टीप्लाई हो गया. So it is 3 upon 2 and 3a minus 2a is 1a, 3a minus 2a is 1a, 3a minus 2a is 1a. ठीक है. हम देख रहे हैं a upon 2 का पेयर बन गया, इधर भी a upon 2 का पेयर बन गया, और ये जो 3 है ये अकेला बच गया. तो 3 जो बच गया उसको छोड़ देंगे, बाकी को बाहर निकाल लेंगे. स्क्वायर रूट में से a upon 2 के पेयर में से एक a upon 2 बाहर आ गया,
दूसरे a/2 के पेयर में से भी एक a/2 बाहर हो गया और अंदर बच गया √3 जिसका पेयर नहीं बन पाया। ये सब हमने 8th क्लास में स्क्वायर रूट चैप्टर में सीखा है। √3 को हम अगर आगे लिखते हैं a इंटू ए हो गया a² और 2 जो हो गया बच्चों 4, तो ये हो गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला भी होता है, यानी ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया है भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का, दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कुछ नहीं करना है, केवल सेमी पैरामीटर निकालना है और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। नहीं, यहाँ पे ऑल द साइड्स वर इक्वल, सो ए बी सी सभी की जगह हमने ए लिख दिया। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन सेकंड पार्ट, इफ द पैरामीटर इज 180 then what will be the area? Now perimeter is 180, so now perimeter is 180 centimeter. So if perimeter is 180 centimeter, then semi perimeter is half of the perimeter. Okay, तो ये होगा 180/2, that is 90. perimeter 180 है, यानी a + b + c 180 है, और हमें पता है s क्या होता है, s होता है a + b + c/2, हमने /2 कर दिया तो ऐसा आ गया। अब हमें पूरा हीरोस फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला निकाल लिया है यहाँ पर, तो इसलिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड की जगह हम लिख देंगे 90, क्योंकि अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तब भी आएगा तो यही, लेकिन जब हमने फर्स्ट पार्ट में पूरा ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया है, तो इन सेकेंड पार्ट वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया उसमें 90 का स्क्वायर है, टू 2 जा 4, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द आंसर 4050 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 से 45 कैंसिल। नाउ 45 इंटू 45 इज and √3 centimeter square. Okay, so this is the answer, this is the area of the equilateral triangle. Now 45 square is 2025 √3। ठीक है, 45 का स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर ये आएगा 2025, और √3 है तो यहाँ पे हमने √3 लगा दिया है, और सेंटीमीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। एरिया कैलकुलेट करना हो तो उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज पैरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। Now in second question, the triangular side wall of a flyover has been used for advertisement. तो ये जो वॉल है ट्रायंगुलर वॉल है, दो हैं लेकिन एक वॉल यूज़ की है, तो इस पर एडवर्टिजमेंट लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक वॉल है जिसकी साइड्स हैं 122 मीटर, इस पर एडवर्टिजमेंट लिखा जाएगा। द एडवर्टिजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो वो जो एडवर्टिजमेंट होगा उसकी कॉस्ट होगी 1 मीटर स्क्वायर जगह पर एडवर्टिजमेंट करने के 5000 रुपीज़ लगेंगे 1 ईयर के लिए। ठीक है, सो अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, एक कंपनी ने जो वॉल है उसको हायर किया, लेकिन नॉट फॉर द ईयर फॉर 3 मंथ्स। तो कह रहा है हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो कितना रेंट देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर उसने रेंट की जो कॉस्ट है वो उसने पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग दे रखी है, यानी एरिया के हिसाब से देना पड़ेगा। तो पहले हमें इस पूरे वॉल का एरिया कैलकुलेट करना होगा, देन विल सी देन हाउ मच रेंट डिड द कंपनी पे। ओके, so firstly we'll calculate the area of the triangle. So by Hero's formula, area of the triangle is given by root s minus a, s minus b, s minus c, but before that s is equals to semi perimeter, that is the half of the perimeter a plus b plus c upon 2. So let one of the side is a, किसी एक को b ले लो और तीसरी को c,
इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो 122 प्लस 120 प्लस 22/2, 2 + 2 4. So सेमी पैरीमीटर इज 132. ओके, ये आ गया बच्चों सेमी पैरीमीटर. तो एरिया जो होगा ऑफ ट्रायंगल वो होगा रूट ठीक है. अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम 132 -122, 132 - 120, 132 - 22. इनको हमने माइनस कर दिया. अब रूट निकालने के लिए अच्छा ये है कि हम इनको फैक्टराइज कर दें. तो 132 के फैक्टर होते हैं 11 × 12. इस 10 को, ये को 12 है, इस 110 को लिख सकते हैं 11 × 10. ठीक है. तो हमने प्राइम फैक्टर नहीं की, वो भी कर सकते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. इससे अच्छा है यहाँ पे नज़र आ गया 12 10 दिख ही रहे थे हमें, 2 10 नज़र आ रहे थे, तो उसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है. तो हमारे पास 2 12 हो गए, 2 11 हो गए और 2 10 हो गए. ठीक है. तो पेयर बन गया है. तो इसलिए 12, एक 12 बाहर आ गया, एक 11 बाहर आ गया, एक 10 बाहर आ गया. सो 1320 मीटर स्क्वायर एरिया. तो उस वॉल का जो एरिया है वो आया 1320 मीटर स्क्वायर. ठीक है. 1320 आया बच्चों इसका एरिया. और 1 मीटर स्क्वायर के 5000 रुपये देने पड़ते हैं 1 साल के. ठीक है. तो अब निकालते हैं कि इतने मीटर स्क्वायर के कितने देने पड़ेंगे. तो for 12 months rent of 1 meter square is ₹5,000. लेकिन ये 12 मंथ का, तो 1 मंथ का कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर का होगा 5,000/12. तो फिर 3 मंथ का कितना होगा, क्योंकि कंपनी ने 3 मंथ के लिए लिया है. तो हमने 1 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ का निकाल लेते हैं हम. ये आ गया. ठीक है. तो ये 3 मंथ का है 1 मीटर स्क्वायर का, और हमें निकालना है इतने मीटर स्क्वायर का. तो देयरफॉर फॉर 3 मंथ्स रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर विल बी, ये 5,000/4 तो 1 मीटर स्क्वायर का है. ठीक है. तो 5,000/4 तो 1 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ का. तो फिर 3 मंथ का निकालने के लिए क्या होगा, इंटू कर दें, सॉरी इंटू इसका 1320 मीटर स्क्वायर का. ठीक है. 1 मीटर स्क्वायर का 5,000/4, तो 1320 मीटर स्क्वायर का इंटू कर दिया हमने उसको. ठीक है. तो इतना रेंट लगेगा 16,50,000. ठीक है बच्चों. सो दिस इज द way to calculate the area. Firstly calculate the cost, firstly find the area, then multiply area with the rate. ठीक है. तो हमने पहले 1 मंथ का निकाला, फिर हमने 3 मंथ का निकाला, और फिर जो 3 मंथ का आया दैट वाज 5,000/4, दैट वाज फॉर 1 मीटर स्क्वायर, एंड द एरिया ऑफ द वॉल इज 1320. तो फिर हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया. Now in third question, there is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some color with the message "Keep the park green and clean." Now its sides are 11, 6 and 15. Then we need to find the area of painted color. ठीक है. तो हमें उस वॉल का जो स्लाइड है उसकी एक वॉल का एरिया निकालना है जिसकी साइड्स हैं 11, 6 और 15. So we know that when base and perpendicular is not given, then we can calculate the area using Heron's formula. So 3 sides are given. So let one of them is A, other is B, and third is C. So let's find the semi perimeter first, which is A plus B plus C/2. Now A is 15, B is 6, and C is 11/2.
Now 15 plus 6, 21, 21 plus 11, 32, 32 upon 2, that is 16. So 16 is the semi-perimeter. So therefore area of wall is given by root S, S minus A, S minus B, S minus C. Now it is 16, 16 minus 15, 16 minus 6, 16 minus 11. ठीक है, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर हमने. अब 16 तो बच्चों में पता 4 इंटू 4 होता है. 1 को हटा सकते हैं क्योंकि 1 जो है उससे मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाता है. और 10 को हम लिख देते हैं 5 इंटू 2. तो हम देख रहे हैं कि 2 5 पेयर बन गया, 4 का बन गया, 2 अंदर रह गया. जिसका पेयर बन गया उसको बाहर निकालो, जो अंदर रह गया उसको अंदर छोड़ो. तो 4 5 जो 20 रूट 2. ओके, 20 रूट 2. और यहाँ पे गिवन था मीटर में, यूनिट थी मीटर और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. तो यहाँ आ जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी दिस मच ऑफ द एरिया दैट वॉल हैज़. ओके, सो वेरी सिंपल, द फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, वेरी इजी. Now in fourth question, we need to find the area of triangle whose two sides are 18 and 10 and the perimeter is 42. तो दो साइड से दे रखी है, तो एक को A ले लेते हैं 18 और एक 10 है उसको B ले लेते हैं. बट C इज़ नॉट गिवन, लेकिन पैरीमीटर दे दिया है. पैरीमीटर इज़ 42 and we know that perimeter is sum of all sides. So A plus B plus C is 42. Now A is 18, B is 10, so we can find the C. तो C फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लस करके उधर ले जाके माइनस कर देते हैं. तो 18 प्लस 10 28, उधर ले गए तो माइनस का साइन हो गया. तो C आ गया 14. सो थर्ड साइड आ गई. अब हम निकालते हैं सेमी पैरीमीटर, दैट इज पैरीमीटर अपॉन 2 या A प्लस B प्लस C अपॉन 2, बट पैरीमीटर इज 42. 42 अपॉन 2 इज 21. So semi perimeter is 21. So now area of triangle is given by root S, S minus A, S minus B, S minus C. Now S is 21, A is 18, B is 10, C is 14. -18 3, 21 - 10 11, 21 - 14 7. ओके, अब इसको फैक्टराइज करते हैं. तो 21 के फैक्टर हुए 3 × 7, तो 2 7 आ गए, 2 3 आ गए, एक 7 आ गया बाहर, एक 3 आ गया अंदर, बच गया रूट 11. तो 7 3 21 रूट 11. और डायमेंशन गिवन थी सेंटीमीटर में, तो हम लगा देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके.